আজকে তৃতীয় দিন, তো আজকে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, বৃষ্টি নেই, ওই জন্য আমরা যাচ্ছি, তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছি। আজকে 5টা থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে, তো আপনারা যারা দূর দূর থেকে আসছেন তারা আসতে পারবেন, তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আজকে সপ্তাহে ভাগবত পাঠের তৃতীয় দিন, তো আজকে বৃষ্টি মোটামুটি থেমে গেছে, খুব দারুণ। আপনারা যারা এখনও আসেননি তারা চলে আসুন। আপনারা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, কমেন্ট করবেন, যতটা পারবেন শেয়ার করবেন। তো চলুন তাড়াতাড়ি চলে আসুন, 5টা বেজে গেছে। যারা এখনও আসেননি তারা চলে আসুন। এখন বাজছে 5টা 22। তো আজকে সপ্তাহের তৃতীয় দিন, তো আপনারা দেখছেন আজকে তৃতীয় দিন। তো কিছুক্ষণের মধ্যে মহারাজ চলে আসবেন। যারা আপনারা আসেননি তারা চলে আসুন, দেখুন, ঠিক আছে। জল থেমে গেছে, একদম জল হয়নি, একদম ভগবানের কৃপা আছে, কৃপা না থাকলে হয় না। দেখুন জল একদম ঠিক টাইমে শেষ হয়ে গেছে, রোদও উঠে গেছে, হালকা হালকা রোদ। তো আপনারা বাড়ি থাকুন না, আপনারা চলে আসুন। আজকে আজকে তৃতীয় দিন ভগবত পাঠের। আজকে গৌরব গোস্বামী আপনারা জানেন। তো আপনারা দেরি করুন না, আপনারা যারা এখনও আসেননি বা এখনও কালকে স্বপ্ন দেখছিলেন যে জলের জন্য যেতে পেলাম না, কিন্তু আজকে চলে আসুন। আজকে দ্বিধা না করে ডাইরেক্ট চলে আসুন। আপনি আসানসোলে নেমে আপনি জুবলি মোড় থেকে স্যান্ডেল যাকে বলবেন দেখিয়ে দেবে। তো আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, যতটা পারবেন শেয়ার করবেন। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, যাতে আপনাদেরকে নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের দেখাতে পারি। সবাই আসছে, দেখতে পাচ্ছেন সবাই আস্তে আস্তে আসছে, আস্তে আস্তে। এই এখন রাস্তা দেখুন, আমরা দেখুন চেয়ার বাইরে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন চেয়ার বাইরে, দেখুন মনিটর এবং টিভি লাগাচ্ছে বাইরে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। তো বাইরে সব চেয়ার মেয়ার পাতা হচ্ছে, কোনো অসুবিধা নেই, ম্যাগ একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে, আর কোনো অসুবিধা নেই। আপনারা চলে আসুন দ্বিধা না করে, একদম। যারা এখনও বেরোননি, চিন্তা করছেন, আরামে বেরোতে পারেন, চলে আসুন। এরকম মৌকা আর পাবেন না। আমাদের আসানসোল মাটিতে এত বড় বৃন্দাবন খুদ চলে এসছে গৌরব গোস্বামী। তো আপনারা দ্বিধা না করে চলে আসুন, এই মৌকা আর পাবেন না। দেখতেই পাচ্ছেন বাইরে দেখুন টিভি লেগে গেছে, কোনো প্রবলেম হবে না, কোনো অসুবিধা হবে না। তো চলে আসুন, দেখতেই পাচ্ছেন। রাধে রাধে রাধে, দেখতে পাচ্ছেন এগুলো দিয়ে দিচ্ছে রাধে রাধে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কানাজি ছিল, তো দেখতেই পাচ্ছেন। अच्छा है, तो कैसा आज लग रहा है? आज राधा रानी की कृपा हो गई है, तो मौसम भी खुल गया है और भक्तों के ऊपर कृपा बरस रही है, इसलिए राधा रानी की कृपा, अपार कृपा, भक्तों का आना शुरू हो गया है। और कन्हैया जी का जन्म उत्सव है, कल धूमधाम से मनाया जाएगा। आज भी उत्सव है, वामन उत्सव है, आज भी उत्सव, 2-3 उत्सव आज भी होंगे और कल के जन्म उत्सव का होगा। কেমন লাগছে বলবেন, দারুণ। কালকে কানাজির জন্ম উৎসব, আজকে ব্রাহ্ম দেবতার বেটে। তো আপনারা দেরি করে না করে চলে আসুন। এখনও যারা ভাবছেন যে আসবো না চলে আসুন, এই মৌকা আর পাবেন না।
सत्संग के पद पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति का उन आनंद कंद वृंदावन चंद्र श्री बांके बिहारी की एवं वृषभान नंदिनी आनंद कंदिनी श्री राधा रानी की करती थी अर्जुन में, और वो जल भीष्म पितामह के मुख में उनकी तृषा को शांत करने के लिए गए। तो ऐसी स्थिति में जो पड़े हुए हैं, इतना दर्द, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा, परंतु फिर भी उस कष्ट का, उस पीड़ा का, उस दर्द का इनके जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उस पीड़ा से भी ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि मेरे बांके बिहारी कब आएंगे। शरीर के कष्ट से भी ज्यादा मन इसलिए बेचैन है कि गोविंद का दर्शन कब होगा। कृष्ण दर्शन लाल सद, कृष्ण कब आएंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। गौड़ीय आचार्यों ने श्री रूप गोस्वामी पाद में ये कहा है कि भगवान को यदि पाना है तो केवल एक मोल चुकाना पड़ेगा कि कृष्ण भक्ति रस और ले जाने वाला ग्रंथ भागवत हमें निष्काम बनाए। तो भीष्म पितामह के अंदर भी वही प्रेम था, और अंतिम समय इनके जीवन के बाकी बिहारी दर्शन देने के लिए भीष्म पितामह को प्रभु के चरण कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् भगवान कहते हैं बाबा मैं इसलिए उदास हो गया थोड़ा सा, मुझे चिंता हो गई एक बात की। मैंने कह तो दिया कि जब तक आप प्राण नहीं त्यागोगे मैं यही खड़ा रहूंगा, लेकिन अब मैं ये सोच कर चिंतित हो गया कि तुमको तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मरने का प्रोग्राम तुम 2-4 साल के लिए पोस्टपोन कर दो, तो वो तो मरो ही ना। और आप यदि ये मृत्यु का भाव त्याग दो तो मैं कब तक खड़ा रहूंगा फिर, या क्या मुझे और काम नहीं करने? तो बोले मैं इसीलिए थोड़ा सा उदास हो, क्योंकि मुझे भी अब इस संसार से जाना है। हे बांके बिहारी अब इस संसार को देखने की इच्छा नहीं। बोले उन आंखों से तुमको तो देख लिया, ये कृपा है तुम्हारी, पर अब जिन आंखों से तुम्हारा दर्शन हो गया, अब इन आंखों से दोबारा दुनियादारी देखने का मैदान जहां पर अभी अभी महाभारत हुई है, चारों ओर मारकाट मची है, जहां रक्त की धार बह रही है चारों ओर, ऐसे वातावरण में गोविंद मैं तुम्हारा दर्शन कर रहा हूं, अब मैं कहां से क्या लेकर आऊं आपको देने के लिए। और दूसरी बात ये प्रभु की यदि कुछ मिल भी जाए देने के लिए, तो मेरे तो हाथों में भी तीर लगे हुए हैं, मेरे अंदर तो वो सामर्थ्य भी नहीं कि मैं उठकर हाथों से आपको कुछ दे सकूं। वो स्थिति में क्या दूंगा। लेकिन तभी भीष्म जी ने कहा कि गोविंद चाहे हाथ काम नहीं कर रहे तो क्या, पैर काम नहीं कर रहे तो क्या, मेरे सारे अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए तो क्या, लेकिन कितनी कृपा है बांके बिहारी कि कम से कम जाते जाते मेरी वाणी तो काम कर रही है।
तो ये पुष्पतांत्रा छंद में 11 श्लोक गाकर भगवान की स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह। ऐसा लगता है कि बांके बिहारी को ये 11 श्लोक नहीं, पुष्पतांत्रा छंद है ना, ऐसा लगता है मानो 11 फूलों की माला बनाकर बांके बिहारी के गले में पहना। ये स्तुति नहीं है, ऐसा मेरे जीवन की इति हो रही है। मेरे जीवन का ये अंतिम क्षण इति। फिर दूसरा शब्द है स्तुति का मति। इति जो शब्द है ना, ये और भीष्म पितामह की स्तुति देखो प्रारंभ हो रही है, लेकिन स्तुति के प्रारंभ में ही पहला शब्द है इति। कहते हैं गोविंद स्तुति। देखो बड़ा भाव छुपा है, ध्यान से सुनिएगा। स्तुति का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन पहला ही शब्द है इति। मानो बांके बिहारी को याद दिला रहे हैं कि गोविंद ये मेरी आखिरी स्तुति है, इसके बाद मेरी वाणी तुम्हारा नाम नहीं ले पाएगी, इसके बाद मैं तुमको नहीं पुकार पाऊंगा प्रभु। तो हे परमात्मा, बस इतनी इच्छा है कि अब तक की हुई मेरी स्तुति को आपने स्वीकार किया हो या न किया हो, कोई बात नहीं गोविंद, लेकिन ये मेरे जीवन की अंतिम स्तुति है। हे बांके बिहारी, इसको अपने चरणों में स्वीकार कर ले। इति। मैंने सुना एक कोई भगवान गाते रहते थे, बहुत भजन करते, वृद्धावस्था हो गई, बुढ़ापा आ गया भजन करते करते। एक बार बैठे बैठे भजन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो उसी समय ऊपर से ना आवाज आई, भगवान का शब्द कानों में सुनाई दिया, आकाशवाणी हुई, ऊपर से आवाज आई और उस संत ने सुना कि ऊपर से वो आवाज कह रही है मानो कि हे महात्मा, तुमने भजन तो बहुत किया है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारा किया हुआ एक भी भजन स्वीकार नहीं किया। ऐसी आवाज आई ऊपर से। हमने आज तक तुम्हारा एक भी किया हुआ भजन स्वीकार नहीं किया। ये आवाज है। मालूम है, इतना सुनते ही वो महात्मा अपने आसन पर खड़ा हो गया और जोर जोर से नाचने लगा, भगवान का नाम गा गा कर झूमने लगा। तो आसपास जितने भी शिष्य बैठे थे, भक्तों का समूह बैठा था, जितने भी लोग आसपास बैठे थे, वो सब एक दूसरे को देखकर कहने लगे, बोले बाबा तो पागल हो गए। जो कुछ करीबी, कुछ निकट के भक्त थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, इतनी बड़ी पुकार अगर कोई और सुनता तो वो तो सुनते ही मर जाता, आप नाच रहे हो। संत ने कहा क्या बात हो गई ऐसे? अरे भैया, हमने भी तो सुना, ऊपर से आवाज आई कि आज तक किया हुआ तुम्हारा कोई भजन स्वीकार किया नहीं गया। आज तक तुमने जितना भी भजन किया होगा, उनमें से कोई भी तुम्हारा भजन स्वीकार नहीं हुआ। हम लोग सुनते तो हम तो मर जाते, हमारा जीवन बेकार हो गया। हमने इतना भजन किया और स्वीकार नहीं किया, करने का लाभ क्या फिर? लेकिन आप नाच रहे हो, हमको तो लगता है आप पागल हो गए। तो संत ने कहा भैया, मैं पागल नहीं हो गया, मैं प्रसन्नता में नाच रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इस बात से मतलब नहीं वो मेरा भजन स्वीकार करे न करे, मुझे तो इस बात का आनंद है कि कम से कम उसे मालूम तो है कि मैं उसका भजन कर रहा हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, वो स्वीकार करे न करे ये उसकी मर्जी। मुझे तो इस बात का आनंद है कि कम से कम उसे पता तो है कि उसका कोई दीवाना भजन कर रहा है। एक बार कहिए, श्री राम है, श्री राम है। विजय सती रतिरस्तु मे त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। हे बांके बिहारी, कितना अद्भुत ताली नहीं बजाती, स्वयं गाओ, सबका आनंद है। एक
গেল। খুব এনজয় পূজা এখনো হচ্ছে। तुरंत सुन ली और यमराज जी सामने ही आकर, यमराज का वाहन है भैंसा, भैंसे पर बैठकर यमराज जी सामने आ गए और तुरंत माता जी को बोले, माता जी आपने हमें याद किया। जो महाराज यमराज को देखा, माता जी थर थर कांपने लगे, हाथ पैर एकदम हिलने लगे। बोले महाराज आप कौन? अरे बोले आपने तो अभी अभी कहा मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते, तो लो मैं आज्ञा सुनने, बताओ क्या काम है। माता जी इतना डर गई, इतना डर गई। बोले महाराज कोई काम नहीं, बस टोकरी उठवा के सिर पर रखवा दो और पधारो यहाँ। बलवा के बिहारी लाल यमराज को देखते ही माता जी वो मौत बहुत मृत्यु मृत्यु सब भूल गई। बोले बस टोकरी सिर पर रखवा दो और पधारो। तो बंधुओं, मृत्यु का नाम लेना बड़ा आसान है, पर काल का सामना करना बड़ा मुश्किल है। परीक्षित ने जब ये प्रश्न किए सुखदेव जी के चरणों में, तो सुखदेव जी महाराज कितना सुंदर यहां परीक्षित को उपदेश दे रहे हैं। आहा, कितनी मधुर वाणी है सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा हे परीक्षित, आपका ये प्रश्न सर्वोत्तम प्रश्न है, इससे बड़ा कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता। भागवत का ना यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुआ, ये दूसरा स्कंद है भागवत। इस दूसरे स्कंद को भागवत के आचार्यों ने साधन स्कंद कहा है। यहां से सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ हुई, ये दूसरा स्कंद है। श्री शुक उवाच कि वरियाने प्रश्न कृतो लोकहितम्। क्या भरोसा, कब जाना है। लेकिन परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मुझे मृत्यु का अब किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि आप जैसे संतों के चरणों में मैं आकर बैठा। जहां भी जगह मिले, पीछे जो भी भक्त खड़े, अभी छोटे से ध्रुव जी हमारे बीच में आने वाले, बड़ी सुंदर ध्रुव जी की झांकी का आप लोग दर्शन करो तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कौन सा दिन है? कल 5वां दिन है कथा का। 5वां किसने बोला है? किसी ने नहीं बोला। कल कौन सा दिन? चौथा दिन। और आपको मालूम है चौथा दिन भागवत कथा का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे विशेष। कल जब आप कथा सुनने के लिए आना तो ये सोचकर नहीं आना कि हम भागवत कथा में जा रहे हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि ये पवित्र प्रांगण जहां कथा हो रही है हमारे मंडल परिवार के द्वारा, मैंने आपको बताया था कि ये प्रांगण तो वृंदावन बन गया, बोला था ना मैंने। लेकिन कल आप ये सोचकर नहीं आना कि तुम वृंदावन में कथा सुन रहे हो। कल आप जब आना कथा में तो ये भाव लेकर आना कि आप वृंदावन नहीं, आप गोकुल जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो मालूम है क्यों? क्योंकि कल ये प्रांगण वृंदावन से थोड़ी देर के लिए गोकुल बन जाएगा और इस गोकुल में हमारे बीच साक्षात छोटे से बालकृष्ण लाला कन्हैया प्रकट होंगे। हम नंद महोत्सव मनाएंगे। ये भागवत का सबसे बड़ा उत्सव है, नंद महोत्सव। कल आप ये भाव मन में लेकर आना कि हम गोपी हैं या हम ग्वाल बाल हैं, हम बालकृष्ण के दर्शन करने के लिए गोकुल में नंद भवन में बधाई गाने के लिए जा रहे हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी। तो भैया कल का उत्सव
बड़ा विशेष उत्सव होगा। और बताते हैं कि कैसे श्री ब्रह्मा जी को 100 वर्षों तक तप करने के उपरांत भगवान के वैकुंठ का दर्शन हुआ था और भगवान के माध्यम से ब्रह्मा को चतुश्लोकी का उपदेश प्राप्त हुआ। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की प्रेरणा दी और शक्ति दी तो उस समय 4 श्लोक सुनाई थे भगवान ने। इन 4 श्लोकों को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी माने 4 श्लोक वाली भागवत। ये 4 श्लोक ही भगवान ने ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद को दिए, नारद ने वेद व्यास को दिए और वेद व्यास ने उन्हीं 4 श्लोकों के लिए 18,000 श्लोक यानी भागवत की रचना की। तो भागवत के मूल में ये 4 श्लोक है। ये भगवान ब्रह्मा को सुना रहे। मैं चाहूंगा आप लोग ये 4 श्लोक जरूर सुनिए, क्योंकि ये भागवत का आधार है ये 4 श्लोक। और ऐसा भी विद्वानों का मानना है कि जो इन 4 श्लोकों का रोज पाठ करते हैं या सुनते हैं उनको भागवत का फल प्राप्त होता है। तो भगवान ब्रह्मा को ये 4 श्लोक सुनाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सद् सत्परम् पश्चादहं यदेतत्। जो मैंने कहे अभी ये भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को बताया और इन श्लोकों में भगवान विस्तार का तो समय नहीं, चतुश्लोकी की भी बड़ी व्याख्या। भगवान क्रमशः यहां पर उपदेश करते हुए ब्रह्मा को बताते हैं कि ब्रह्मा सबसे पहली बात सुनो, अहमेव आसम। भगवान कहते हैं जब ये संसार नहीं था तो मैं ही था। जब संसार बन गया जो कुछ दिखाई दे रहा है भगवान कहते हैं ये भी मैं ही हूं। अग्रे पहले भी मैं ही था, जब बन गया तो भी मैं ही हूं। और योग शिष्य थे, जब सब मिट जाएगा तो अंत में जो बचेगा भगवान कहते हैं बचने वाला भी वो तत्व अंत में मैं ही। आप लोग समझ रहे हो? बांके बिहारी कह रहे हैं कि जब तक संसार नहीं था, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो मैं ही उस समय विराजमान था। जब ये विश्व बन गया तो जो कुछ दिखाई दे रहा है भगवान कहते हैं ये दिखाई देने वाला भी सब मैं ही हूं। और जब प्रलय हो जाएगी, सब समाप्त हो जाएगा, भगवान कहते हैं तो उस समय भी ये सब मेरे ही अंदर जाएगा, मैं ही बचूंगा। ये उपदेश ब्रह्मा को दिया। मूल तत्व परमात्मा। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको समझाने के लिए मैं कहूं, जैसे हम सोना खरीदते हैं, वो सोना ले जाकर हम किसी सुनार को दें जो इसलिए काम करता हो कि मुझे दुख मिले, प्रेम से गौशी आए। एक भी देखा हो तो भैया बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ये सोचकर काम करता हो कि बदले में मुझे कष्ट मिले, मुझे दुख मिले। सुबह से शाम तक हमारे काम केवल और केवल इसीलिए होते हैं कि हमको सुख मिले, सुख मिले। कोई भी क्यों ना, हम दूसरे को छोड़ो, सबसे पहले व्यक्ति अपना सुख देखता है, मुझे सुख मिले। एक ना छोटा सा बच्चा था, उस बालक को किसी ने पूछा कि बेटा तू अपने माता पिता से प्यार करता है? तो बच्चे ने कहा बहुत प्यार करता है। अच्छा बेटा कितना प्यार करता है? बोले बस तुम पूछो तो मैं जवाब दूं, मैं तो बहुत प्यार करता हूं। तो उस व्यक्ति ने जो पूछ रहा था उसने पूछा कि बेटा इतना ही प्यार करता है तो ये बता कि मम्मी के पास सोएगा या पापा के पास सोएगा? बेटा क्या तू समझ नहीं पा रहा किसको ज्यादा प्यार करता है? बोले वो बात नहीं है। तो बोले फिर क्यों नहीं जवाब देता, मम्मी के पास सोएगा या पापा के? तो बोला ना मम्मी के ना पापा के, मैं कूलर के पास सोऊंगा। प्रेम से कहो श्री राम। एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसको भी पता है कि मैं क्या करूं जिससे सुख मिले। पहले सुखाय कर्माणि करोति लोग। व्यक्ति सबसे पहले अपना सुख देखता है। परंतु मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी
यही कष्ट की बात है कि जब व्यक्ति केवल और केवल अपना सुख देखता है ना, तभी व्यक्ति को बदले में दुख प्राप्त होता है। जहां तुम अपना 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 सुख देखोगे, वहीं बदले में तुमको दुख मिलेगा। लेकिन तुम थोड़ा इस भाव को पलट कर तो देखो भैया, अरे अपने सुख के लिए इतना काम करते हो, कभी दूसरों के सुख के लिए भी काम करने लग जाओ तो बिना मांगे तुमको सुख प्राप्त होगा। सहारा बनो। यदि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम्हें खुद ब खुद सहारा मिल जाएगा। अरे किसी की डूबती कश्ती को पहुंचा दो किनारे, तुम्हें खुद ब खुद किनारा मिल जाएगा। तुम्हें खुद ब खुद किनारा मिल जाएगा। मैत्रेय ऋषि ने यहाँ सृष्टि क्रम का बड़ा विस्तृत वर्णन किया। ये बताया कि प्रेम से कहिए श्री राम है, श्री राम है। वराह बनकर भगवान आए। मेरे प्रभु ने ये 12 अवतार लेकर बड़ा अद्भुत पराक्रम दिखाया। रसातल में भगवान गए, खूब महाराज हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ है और बाद में उस दुष्ट का उद्धार किया। हिरण्याक्ष का उद्धार करके पृथ्वी को अपनी डाढ़ पर रखा और पृथ्वी को लेकर भगवान रसातल से आए हैं, ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने मनु को पृथ्वी सौंपी है और मनु ने फिर इस पृथ्वी पर मानवों की सृष्टि का विस्तार किया। ये भागवत का प्रसंग है। बोलो महादेव भगवान की जय। 3 बेटियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। श्रीमद् भागवत में सर्वप्रथम श्री देवहूति की कथा आई है। ये मनु महाराज की बीच की बेटी है। बड़ी बेटी है आकुति, छोटी बेटी है प्रसूति और बीच की कन्या है देवहूति। के साथ प्रेम से कहो श्री राधे। कर्दम नाम के ऋषि थे जिन्होंने 10,000 साल तक बिंदु सरोवर पर, गुजरात में बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर के किनारे 10,000 साल महाराज कर्दम ऋषि ने भगवान की स्तुति करी, पुकारा प्रभु को, तप किया। अब बुलाए भगवान न आए, ये कैसे हो सकता है? 10,000 साल तक करने के बाद
কালকে চতুর্থ দিন, কালকে আপনারা কালকে শিগগিরই চলে আসবেন, দেরি করবেন না, লেট করবেন না। তো আজকের মতন এইখানেই, রাধে রাধে।